welcome to my YouTube channel Foundation Physics. I hope you all are good and safe at your homes, and you all are enjoying your studies. And so, as you all know that कि on this channel we are doing the pre-foundation series, और pre-foundation series में हमने measurement, motion and force 3 chapters को cover कर लिया है according to class 6. Okay, and now we are going to start the next chapter. अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स में कोई डाउट है सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द क्लियरिफिकेशन ऑफ दैट. या फिर अगर आप चाहते हो कि किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो मिले या किसी अदर क्लास के टॉपिक पे वीडियो मिले तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो फॉर दैट थिंग. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. So let's start the chapter without wasting your time. Our today's topic is going to be work. तो सबसे पहले जब हम वर्क को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो होता है व्हाट इज़ वर्क डन और डिफाइन वर्क डन. सो द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इज इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ब्रिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी. कि बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करो और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी कि बॉडी डिस्प्लेस हो जाए फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ और अपोजिट टू इट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी. कि इस केस में हम क्या कहेंगे कि बॉडी पे वर्क डन हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्लॉक, ओके, एंड we apply a force F on this block in this direction. So now the block start displacing in this direction. So in this case we can say that कि block is displaced from point A to point B by the application of force. So now we can say that जो block has been moved, यानी कि this is the displacement denoted by S and by the application of force. So here we can say that the work is done on the block. कि जो ब्लॉक है उस पर आपने वर्क डन किया है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ बुक, ओके, और इस बुक को आपने क्या किया, लिफ्ट किया. लिफ्ट करने के बाद यहाँ से उठा के पोजीशन भी, फॉर दिस इज पोजीशन ए एंड पोजीशन बी पे ले जाके आपने इसको प्लेस कर दिया. सो नाउ यू कैन से दैट वर्क इज ऑल्सो हैज़ बीन डन हेयर. मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसका. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डस्टर, ओके. अब ये डस्टर इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए. तो अभी हम क्या करते हैं, इस डस्टर को लिफ्ट करने के लिए, मूव कराने के लिए अपना फोर्स यूज़ करेंगे, मस्कुलर फोर्स, एंड द डस्टर स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन. Okay, now as you can see that कि duster has been moved from point A to point B. So जो ये movement है this is the displacement of the duster denoted by S. इसको displacement ही note down कर देता हूँ. Displacement, okay, and displacement करने का जो reason था that is force F that is applied here. So now we can say that on the application of force on an object, the object start displacing, object start moving, so that means work has been done. Okay, I hope this is clear for you all. Now we are going to discuss about the mathematical expression for work done. Mathematically आप work done को कैसे express कर सकते हो. For example, there is a block at position A. तो A जो position है that is the initial position of the object. Initial position. Now we apply a force F on it in this direction. So by the application of force, this block starts moving and reach position B. Okay, so this is position B and we are going to say the final position of the object. Final position. So now as you can see from the diagram, the object है जो block है, it has been displaced from point 1 to point B, point A to point B, and this is the displacement
and displacement is always denoted by S. So for displacing the object we had applied a force F. So work done that is denoted by W is always equal to the product of applied force and the displacement. So it means work done W is equal to, here जो force apply हुआ है that is force F. So work done W is equal to F multiply by, and the displacement is here S. So the work done becomes the product of the force and the displacement. So this becomes the formula of work done. That means W work done is equal to the force into displacement, and this is also known as the mathematical expression of the work done. मैं इसको एक बार फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ. हमने क्या किया, we had applied a force F on an object and the object get displaced in the direction of force. Okay, now the displacement is here S and the application of force or the applied force is F. So the work done becomes F into S. I hope this is clear for you all. Now we are going to discuss about the units of work done. SI unit of work done is known as Joule. Joule is the spelling, and it is denoted by J. Okay, and the CGS unit of work done is ERG. ERG. Okay, so SI unit होती है आपकी Joule and CGS unit होती है ERG. Okay, SI unit Joule, CGS unit ERG. Now I am going to tell you about the relationship between Joule and the ERG. So as you know that 1 Joule is equal to 1 Newton multiplied by 1 meter. It becomes because जो आपका जो work done है that is equal to the multiplication of the product of force and displacement. So force की जो SI unit है that is Newton and जो displacement की unit है वो है meter. So that's why 1 Joule जो work done हो गया, that is the work done is said to be 1 Joule when 1 Newton force is applied on an object and it get displaced 1 meter in the direction of force. तो यहाँ पे आपका जो जूल है वो क्या है, SI यूनिट है फोर्स की. इसको हमें लेके जाना है किसमें, CGS में. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम फोर्स की SI यूनिट से किस में कन्वर्ट करेंगे, CGS यूनिट में, और डिस्प्लेसमेंट भी CGS में कन्वर्ट कर देंगे. सो द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. CGS unit of force is dyne and the CGS unit of displacement is centimeter. And as you all know that 1 Newton is always equal to 10 to power 5 dyne and 1 meter is equal to 100 centimeter. So that's why here 1 erg becomes 10 to power 5 dyne multiply by 100 centimeter. So overall you can write down it it is 1 Newton, 1 Joule. So 1 Joule of work done is also equal to 10 to power 7 dyne centimeter, that is also known as erg. That means the CGS unit of work done. So 1 Joule of work has 10 raised to power 7 erg of work done in it. I hope this is clear for you all. इसमें हमने क्या डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन द जूल एंड द अर्ग. Now we are going to discuss about the types of work done. So types of work done are basically, there are 3 types of work done: positive work done, negative work done and zero work done. So positive कब होगा, negative कब होगा, zero कब होगा, let's discuss about it. First let's discuss about the positive work done. पॉजिटिव वर्क डन में अभी आपने देखा था वर्क डन के केस में दैट व्हेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट. ओके, सो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्लेस. अब ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेस होने के जो चांसेस है या जो मेथड्स है वो क्या है कि फर्स्ट केस होता है ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेस्ड. सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो हो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सेकंड में भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो बट नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स.
ओके तो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट both are same, both are same, that means the direction of applied force and direction of displacement are same. So in that case the work done is known as the positive work done. Work done होगा आपका positive work done. And if the direction of applied force and the direction of displacement are not same, or we can say that they are in opposite direction. ओके तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन, दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. फॉर एग्जांपल वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ओके, और ग्राउंड में वी आर प्लेइंग फुटबॉल, लेट कर लेते हैं. तो फुटबॉल के केस में क्या है, अ प्लेयर ए किक द फुटबॉल फ्रॉम हेयर एंड इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी और विद अ हाई स्पीड, एंड नाउ द प्लेयर बी try to kick the ball in the opposite direction. So that means the player B had applied some force on it, but क्या होता है कि जो प्लेयर A की फोर्स है उसकी वजह से जो वेलोसिटी है, जो मोमेंटम है, उसकी वजह से क्या होती है, प्लेयर B इसको किक को तो करता है बट ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर भी क्या होती है, यहाँ से टकरा के वापस इधर ही भाग जाती है. ओके सो दैट मीन्स प्लेयर B जिधर भेजना चाहता था, जिस तरह इसको पुश करना चाहता था, उधर ये पुश नहीं हो पाई. तो यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज़ negative work done. Or for example there is a car that is coming towards a person with a high speed. लेट कर लेते हैं कि ये जो कार है it is moving at a speed of 120 किलोमीटर पर आवर. ओके अभी यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन आ जाता है यहाँ पे और अभी अभी देख के आया वो बाहुबली. तो ये क्या कहता है कि आई एम गोइंग टू स्टॉप द कार. कार को स्टॉप करने के लिए खड़ा हो गया, सामने कार आ रही है इधर से, दैट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट्स टू स्टॉप द कार और वांट्स टू चेंज द डायरेक्शन. तो यानी कि जो पर्सन है, दिस पर्सन वांट्स टू अप्लाई सम फोर्स ऑन द कार एंड वांट्स टू डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो फोर्स की डायरेक्शन यू कैन सी हियर, बट होगा क्या, सबको पता है कि जो कार होगी, कार विल मूव अलॉन्ग विद द पर्सन. ओके सो अभी क्या हुआ, पर्सन ने क्या किया, फोर्स तो अप्लाई किया, बट जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड फोर्स की डायरेक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. हियर द वर्क डन इज नोन एज द नेगेटिव वर्क डन. जीरो वर्क डन के केस में क्या होगा, एज यू नो दैट जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement. So work done is depend on the force and on the displacement. So higher amount the force, higher will be the work done. Higher amount the displacement, higher will be the work done. Okay so that means work done depend करता है आपके force और displacement पे. Zero work done के केस में क्या हो, if you are applying some force on an object and the object is not moving, that means force is applied here but displacement is zero, displacement is zero. तो in that case क्या होगा, your work done is said to be zero work done. For example आप क्या करते हो, आप एक वॉल को ट्राई करते हो पुश करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द वॉल हेयर. अब मैं इसको कंटिन्यूसली पुश करता हूँ, तो पुश करते टाइम क्या है कि आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट but the wall is not moving anywhere. So that means we can say that here displacement is zero. Displacement is zero, that means overall work done will becomes zero. Okay, second case क्या हो गया, ये तो first case हो गया if the force or if the displacement is zero. Second case होता है if the object displays at angle of 90 डिग्री, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस तो हो बट वो डिस्प्लेस हो एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो इन दैट केस जो आपका वर्क डन होगा दैट विल ऑल्सो बी नोन एज जीरो वर्क डन, बिकॉज जो वर्क डन है उसका जब आप हायर क्लासेस में फॉर्मूला स्टडी करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. ओके एंड कॉस थीटा जो होता है कॉस 90 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू जीरो. सो दैट्स वाई अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया. कॉस
इसके ज़ीरो होने की वजह से क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ ज़ीरो हो गया, यानी कि ओवरऑल वर्क डन ज़ीरो हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डस्टर हेयर, ओके। अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट ए, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया, ओके। और इसको यहाँ तक एट दिस पॉइंट तक हमने इसको लिफ्ट किया, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट बी। सो नाउ यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओके। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, एक राइट एंगल पे हुई है। तो राइट एंगल मीन्स हो गया एंगल थीटा जो है वो है 90 डिग्री। थीटा 90 हो गया, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, एफ वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा ज़ीरो हो गया 90 की वजह से, जैसे ये ज़ीरो हुआ तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। तो इन दिस केस हम क्या कहेंगे वर्क डन को, कि वर्क डन इज़ ज़ीरो। तो आप क्या बोलोगे अल्टीमेटली, कि वर्क डन इज सेड टू बी ज़ीरो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो और इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट डिस्प्लेसिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। हमने आज की क्लास में वर्क डन को डिस्क्राइब किया, वर्क डन को डिस्कस किया। In the next class we will do some numericals based on the work done and then start the next part. तब तक के लिए bye, take care, stay tuned. And one more thing, like, share and subscribe. Until next video.